जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों। क्या उस निर्णय के साथ इस गाने को हम गा सकते हैं? परमेश्वर, अगर आज इस भवन में हम हैं, ये परमेश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा है। और मैं जैसा भी दिखता हूँ, मेरा जैसा भी परिवार है, तूने मुझे वो परिवार को दिया है और मेरा जीवन तेरे हाथों में है परमेश्वर। तेरे हाथों में। Our life is valuable because it is in the hands of God. तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं।
जीवन में जो कुछ भी आपने किया है प्रभु, एक मकसद के साथ किया है प्रभु। कुछ भी आपने जो हमारे लिए किया है वो हमारे हानि के लिए नहीं है प्रभु, हम विश्वास करते हैं। Lord, everything is there in our lives, even our pain, even our sorrows, Lord Jesus, our joy, our comfort, it is for your glory alone, Father Lord Jesus. Believe that, Father Lord. प्रभु, हम उस पर विश्वास करते हैं। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें, आत्मा से भर दे हमें। हालेलुया, 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 Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart unto the King of Kings. Easy है? Just इतना ही है गीत. Okay. Making melody in my heart. बोलो, making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart unto the King of Kings. Unto the King of
Kings. Kings. Okay, इतना ही गीत है. Okay. Okay. Simple One. song. मेकिंग मेलोडी का मतलब हम परमेश्वर के लिए एक गीत गा रहे हैं, गीत बना रहे हैं. बना रहे हैं. मेकिंग परमेश्वर के लिए मतलब किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजाओं के लिए हम एक गीत बना रहे हैं. हिंदी क्लास लेना जस्ट पड़ेगा. इतना सा एक. We need better translation. कुछ नहीं. ओके. ओके. 1 2. इसके साथ इसका एक्शन भी होगा इसके बाद. ओके. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart unto the King of Kings. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart unto the King of Kings. अभी मैं एक इंस्ट्रक्शंस दूंगा, सो आप लोगों को करना है. Hallelujah. इसमें सिर्फ ब्लेसी दीदी को छूट है. बाकी सबको करना पड़ेगा. ब्लेसी दीदी और एंजी जी को, बाकी सबको करना पड़ेगा एक्शंस. Yes. इवन नोबल भाई. ओके. सो पीटर को भी. पीटर कम. पीटर आगे जाओ. Yes. ओके. Let's do dance. Okay, 1 2 3 stop. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart unto the King of Kings. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart unto the King of Kings. बोलो thumbs up. बोलो thumbs up. Thumbs up. Okay, अभी गाओ. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart unto the King of Kings. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart unto the King of Kings. Thumbs up. Elbows out. Okay. So thumbs up. Thumbs up. Elbows out. Elbows out. Okay. आपको भी चिल्लाना है मेरे साथ. ओके. कमांडोज को देखा ना आपने चिल्लाते हुए. हाँ. How is it? So easy. Thumbs up. One, Elbows two. out. Thumbs up. Elbows out. अभी ऐसे करके गाना गाना. ओके. 1 2 3 start. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart unto the King of Kings. Thumbs up. Elbows out. Legs apart. Okay. अभी करना है. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart unto the King of Kings. और एक बार. Making melody in my heart, Making melody in my heart. Making melody in my heart. unto the King of Kings. Thumbs up. Elbows out. Elbows out. Legs apart. Legs apart. Knees bent. Knees. Okay. 1 2 3 start. Making melody in My heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Unto the King of Kings. Thumbs up. Thumbs up. Elbows out. Elbows out. Legs apart. Legs apart. Knees bent. Knees bent. Turn around. Turn around. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Unto the King of Kings. Thumbs up.
thumbs up, elbows out, elbows out, legs apart, legs apart, knees bent, knees bent, turn around, turn around, tongues out. tongues out. La, La 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 la. और एक बार ला 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 La 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 la. इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी, जी के हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मेरे पाए नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए, खड़े जब उस स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा मैं तेरा। बेहद खुशी बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थामेंगे, मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए, हो गाऊंगा मैं तेरे लिए, जो तूने छुड़ाया मुझे है, हो गाऊंगा मैं तेरी जय। ओ हो गाऊंगा मैं तेरे लिए, जो तूने छुड़ाया मुझे है, हो गाऊंगा मैं तेरी जय। है आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। मैं बदला सदा के लिए, है आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है,
मैंने पाया नया जीवन है। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। चाहे मैं चलूं साए मौत की तराई में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरे डर को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटूं ना तू पास है जो मेरे। दुष्टता से डरूं ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता, और संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ा हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए वो जो है थामे तुझको। तेजस्वी सब तुलना से पार, सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक हम जाने तुझे इस धरती पर। हो दुष्टता से पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे
वो जो है थामे तुझको, सारे संघर्ष थम जाएंगे, पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उठान, तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता, संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। आप प्रभु विश्वास करते हैं कि तू हमें कभी ना छोड़ेगा प्रभु, चाहे कोई भी चढ़ाव या कोई भी मुसीबत क्यों ना हमारे जीवन में आए, तू हमें कभी ना छोड़ेगा। अपने पंखों तले तू हमें रखेगा प्रभु, अपने हाथों से हमें थामेगा प्रभु। विश्वास करते हैं प्रभु, तू हमें चलाने वाला है प्रभु, विश्वास करते हैं। Lord, we believe that Father Lord Jesus, that you're going to lead us Father Lord Jesus out of all the troubles Lord Jesus, out of all the highs and lows Father God Jesus of our lives. Thank you Father Lord Jesus for taking us through Lord Jesus so far Father Lord Jesus. Lord, thank you Father for the redemption that you have given us Lord Jesus. Thank you for your grace Lord Jesus. Lord, thank you for dying for us on that cross Lord Jesus. प्रभु उस क्रूस पर हमारे लिए अपना जान कुर्बान किया प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। Most valuable gift that you have given us Lord Jesus. तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। प्रभु तू बन गया दास समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी
घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। ओ यीशु राजा, आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। राज, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, ओ घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज, ओ तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, प्रभु घुटने टिके आपके नाम के लिए। तू राज, ओ तू राज करे सारी दुनिया पे। सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। നീ വാഴുമെന്നും, നീ വാഴുമെന്നും, നീ വാഴുമെന്നും
लोग थोड़े समय अपने आंखों को बंद करें। खुदान परमेश्वर ने हमारे लिए किए हुए सारे उपकारों को जरा याद करें। गीत इस तरह कहता है, परमेश्वर तू राज करे, भले मेरी परेशानी मुझे निराशा में डाले, भले मेरे घर के झगड़े मुझे निराशा में डाले, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर कि तू राज करता है। दाऊद इस तरह कहता है, क्योंकि मैंने मेरे परमेश्वर को मेरे आगे रखा है, कोई भी चीज मेरा विरोध नहीं कर सकती। जब दाऊद जंगल में अकेला था, जब वो परमेश्वर की आराधना करता था, भले आसपास उसके साथ कोई नहीं हो, भले उसके मदद करने के लिए कोई नहीं हो, दाऊद की कहानी में इस तरह लिखा है कि उसके पिता ने कई बकरियां दी। उस बकरियों को संभालते हुए जब दाऊद था तो कई बार दाऊद अकेलापन महसूस किया होगा कि इन बकरियों के साथ मैं क्या बात करूं, मेरे हृदय की बातें मैं इनको कैसे बताऊं, क्या समझेंगे। लेकिन तभी भी दाऊद एक चीज करता था, वो परमेश्वर की आराधना करता था। आराधना करने वाले का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भले वो अकेला एक परिस्थिति में रहेगा, लेकिन कभी वो अकेलेपन को महसूस नहीं कर पाएगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह और शिष्य नाव में थे, तब अचानक से एक बड़ी आंधी और तूफान उनके विरोध में आई। आंधी और तूफान समुद्र में थी, लेकिन नाव के अंदर नहीं थी। यीशु मसीह शिष्यों को देखकर कहता है, शिष्य उनको जाकर पूछते हैं, हे गुरु, हम मर रहे हैं, तुझे चिंता नहीं है क्या? क्योंकि उन्होंने नाव के अंदर के शांति को भूलकर नाव के बाहर जो आंधी और तूफान है उस पे अपना विश्वास थमाए रखा था। नाव में जब यीशु मसीह है तो उनका विश्वास या फिर उनका धैर्य बाहर जो बड़े आंधी और तूफान है उस पे आ गया था। वहां पे ऐसा लिखा है, यीशु मसीह उनके बातों को सुनकर उठता है और आंधी और तूफान को शांत कर देता है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे कहीं जीवन के इस ऐसे आंधी और तूफान की अवस्था को जब हम इस बात को समझेंगे कि हमारे नाव में, हमारे जीवन में यीशु मसीह है, तो हम आंधी और तूफान से उस पर ज्यादा परमेश्वर के ऊपर आश्रय रखेंगे। कई बार हमारे जीवन में सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है कि हम किसके ऊपर आश्रय रखें, किसके ऊपर विश्वास करें, क्या करें, या फिर परिस्थिति को देखकर हम हमारे चिंताओं को बदल देते हैं। लेकिन मैं आज सुबह आप लोग से कहना चाहता हूं, क्या आप उस परमेश्वर के हाथों में अपने परीक्षाओं को, अपने परेशानी को डाल सकते हो? सब लोग अपने आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं आप थोड़े समय परमेश्वर से जरा बात करें। परमेश्वर, पिछले एक हफ्ते मैं ये चीज से चली गई या ये चीज से चला गया, मुझे पता नहीं था कैसी चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन आज मैं परमेश्वर आंधी और तूफान को देखकर नहीं, नाव में बैठे हुए, मेरे साथ बैठे हुए यीशु मसीह को देखकर मैं आज चलना चाहती हूँ या चलना चाहता हूँ। और क्या हम कह सकते हैं, परमेश्वर तू राज करे हमारे जिंदगी में, परमेश्वर तू राज करे हमारे जिंदगी में। और कोई परेशानी नहीं, और कोई बीमारी नहीं, और कोई घर के झगड़े नहीं, और कोई वाद विवाद नहीं, तू राज करे परमेश्वर। असमाधान मेरे घर पे नहीं राज करेगा परमेश्वर, तू राज करेगा। रोग मेरे घराने में राज नहीं करेगा, तू राज करेगा। घर की भिन्नताएं नहीं राज करेंगे मेरे घर पे, परमेश्वर तू राज करेगा। निराशाएं नहीं मेरे घर पे राज करेगा, तू राज करेगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं।
हमारे जीवन के इस परिस्थिति में, हमारे जीवन के इस दिनचर्या में हम कई चीजों के ऊपर आश्रय रखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं परमेश्वर कि हम आज से तेरे ऊपर आश्रय रखें। तो हमें इस काबिल बनाने वाला है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। आने वाले दिनों में हम वर्शिप के बारे में कुछ समय सीखेंगे, ऑल्टर के बारे में। जो लास्ट संडे को इस हॉल के इनॉग्रेशन के लिए आए थे, परमेश्वर के दास पास्टर जी हमारे बीच थे। उन्होंने किस तरह हमसे बहुत ही एक इंस्ट्रक्शन दिया कि हमारे पूर्वजों का वेदी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब मैंने पास्टर के साथ कई समय बिताए तो उसने कहा कि कैसे हम जो मसीह में हैं वे भी कई बार ऐसे पूर्वजों के वेदी के शिकार हो जाते हैं। हम खुद हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे रिलीजियस थॉट को हम एक वेदी के रूप में, और वो हमारे विरुद्ध काम करती है। व्हाट इज इट दैट द लॉर्ड टीचेस, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। कई बार हम हमारे माता पिता जो सिखाते हैं उस पर हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, लेकिन व्हाट डज द बाइबल से, बाइबल क्या कहती है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। बाइबल इस समय पर हमसे इस विषय पर क्या बात कर रहा है। अगर आप आपके लाइफ क्वेश्चंस को लेकर मुझसे सवाल करेंगे तो मेरा एक अलग राय होगा। मैं आपको काउंसिल दे सकता हूँ, मुझे जो परमेश्वर कहता है मैं आपको बता सकता है, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। आपको स्वयं परमेश्वर से सुनने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि आई एम जस्ट अ ह्यूमन। I can give you instruction that I receive from the Lord, but not always God gives an instruction about you. हर बार, लेकिन पास्टर होने के नाते कई बार हम क्या करते हैं, अरे पूछा है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, एंड देन ऐसे ऐसे करके कई बार गलत इंस्ट्रक्शन का शिकार हम होते हैं। कई बार प्रॉफिट्स प्रेशर में आ जाते हैं। अगर मैंने प्रोफेसी नहीं दी लेकिन परमेश्वर कुछ बोल ही नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, हम बना के प्रोफेसी करते हैं। Wrong altars are built. Unknowingly, wrong altars are built. कई बार, ये पास्टर रनित से भी हमारा उस दिन बात हो रहा था कि कई बार हमें लगता है कि हम दर्द में प्रार्थना करेगा तो ही परमेश्वर सुनेगा। अगर ये हॉल में हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था, ये गॉड वाज टीचिंग मी दिस, आई वाज हैविंग दिस वंडरफुल चैट विद हिम। Religion, if I give you an empty space and ask you to pray, how would you pray? तो मैं अगर एक एम्प्टी स्पेस दिया, तुझे प्रार्थना करने के लिए बोला, तो प्रार्थना कैसे करें? मैं बोला मैं वॉक करके प्रार्थना करेंगे। आई लाइक वॉकिंग एंड प्रेइंग। नहीं तो खड़ा रहेगा तो या बैठ जाएगा तो शायद सो जाऊंगा, तो इसके लिए वॉक करके, पास्टर शाइजू ने हमें सिखाया, यू शुड वॉक एंड प्रे सो दैट यू डोंट स्लीप। और कहा कि एक चेयर रखा और खाली हॉल है तो कैसे प्रे करोगे? तब भी मैंने कहा मैं वॉक करके प्रार्थना करूंगा, चेयर पे नहीं बैठूंगा, क्योंकि चेयर पे बैठने से प्रेयर की मेरी क्या बोलते हैं ना कि कैपेसिटी कम हो जाती है मुझे। और दूसरे एक पूछा कि एक गद्दा डाला है और घुटने पर प्रेयर करने के लिए बोला, तो तू कहाँ बैठेगा? मैंने कहा मैं उस पर नहीं बैठूंगा, मैं बाहर बैठूंगा। ये हमारी एटीट्यूड है, क्योंकि गद्दा है कंफर्टेबल, लेकिन मैं दिक्कत में रहकर प्रार्थना करेगा तो ही सुनूंगा। अपने को पनिश करके अगर मैं प्रार्थना, तो परमेश्वर को कैसे भी कन्विंस करूंगा। दिस इज द एटीट्यूड दैट वी हैव। ये हमारी एटीट्यूड है। बट एज ए फादर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो बोलेगा कि मैंने उसको गद्दा दिया है, व्हाई कांट ही बी कंफर्टेबल एंड प्रे? बट कई लोग उसकी गलत फायदा उठाते हैं, फिर सो जाते हैं उस गद्दे में। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हमारी ये सोच जो है, ये समझना जरूरी है कि हमें दंड लगने से परमेश्वर खुश नहीं होता। तो अपने आप को, आपने देखा रहे ना रास्ते पे ऐसा मारते लोग ठाट करके, उनको लगती नहीं है, बस वो आवाज आता है। शायद लगता होगा, मुझे लगा नहीं है, बट वो क्यों करते हैं? दैट इज अ रिचुअल। वो हमारे गांव में देखा है, अपने आप को दंड पहुंचाते हैं, देखा रहेगा ना।
दंड पहुंचाकर। क्यों? उन्हें लगता है कि दंड से उनका परमेश्वर खुश होगा। उन्हें लगता है, आपने देखा ना रोड होते हुए, मेरे गांव में है ईंट लगकर, वो भी एक चर्च है, हाँ कैथलिक चर्च है। ईंट रखकर 20 बार घूमेंगे या तेल चढ़ाएंगे। बाजू में है अपना इधर, अगर पैर में दर्द है तो मोम मिलता है, पैर का मोम, वो डालेंगे तो ये सब रिवाज जो है कलीसिया में आ गया। हमें लगता है कि हमारे प्रयास से हम परमेश्वर को कन्विंस कर पाएंगे। हमें लगता है कि कई लोग संडे को इसलिए आते हैं क्योंकि मैं बुलाता हूं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बेशर्म होकर मैसेज डालता हूं मैं, राइट? नहीं, लेकिन आज का वचन भी हम उसी तरह जाएंगे। लेकिन हम यहां कलीसिया पर आकर भी हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे। वो इसलिए हमसे प्रसन्न होता नहीं कि वो हम कलीसिया में आ रहे, वो इसलिए लिजन से प्रसन्न नहीं कि लिजन यहां पर आके प्रचार कर रहा है। वो पास्टर अनित ने इसलिए प्रसन्न नहीं कि वो सेट करता है, म्यूजिक करता है, बाकी सारे चीजें करता है। वो पहले से प्रसन्न है और ये हमारा जिम्मेदारी है उस परमेश्वर के लिए कुछ करे। तो उसने जो किया उसके रिस्पॉन्स में हम कर रहे हैं। तो ये थॉट हमसे जाना चाहिए कि मैं यहां पर अगर कलीसिया को कुछ देता हूं या कलीसिया के लिए कुछ करता हूं या टाइम पे इस कलीसिया में आता हूं, मैं परमेश्वर को खुश करूंगा। और मेरे टाइम पे आने का ये अटेंडेंस कार्ड होता है ना, 9 AM to 9 PM तो करेक्ट पगार मिलता है। नहीं, दैट इज इररिलेवेंट। ऐसी समझ नहीं है हमारी परमेश्वर, ऐसी समझ हमें रखना नहीं है। सो व्हाई आर वी हियर? हम यहां पर क्यों है? इट इज अ रेस्पॉन्स, ग्रेटफुलनेस है। हम खुश है, हम धन्यवाद के हृदय के साथ इस कलीसिया में, इस भवन में आए हैं। तो ऐसी सारी चीजों को हमें रीथिंक करना होगा। ये अनलर्निंग जो है ना बहुत मुश्किल है। 2 3 6, लेकिन अगर किसी ने 2 3 7 पढ़ लिया ना तो 2 3 6 कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो अनलर्न होना बहुत मुश्किल है। देखा हो ना कैसे कि आज प्रभोज में मैंने एक स्टेटमेंट कहा, मुझे बोलने के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने वो सीखा ही नहीं है। अनलर्न होना बहुत मुश्किल है। तो सब कुछ अनलर्न होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चीजें जो परमेश्वर ने बनाई नहीं है, परमेश्वर ने निर्देश के रूप में दिया नहीं है, जो परमेश्वर के शास्त्र में नहीं है, इट इज एन इंटरप्रिटेशन। किसी के कन्विंस के लिए इंटरप्रिटेशन किया है। दैट शुडंट बी आवर प्रिंसिपल। हमारा सिद्धांत क्या होना चाहिए? परमेश्वर ने मुझसे क्या किया। अभी ये लाइट्स को लेके हम किसी से चर्च करने के लिए जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा रेवलेशन है कि सबसे बेहतरीन करना है। और उसमें इस बेहतरीन में ये लाइट्स भी है। लाइट्स नहीं डाला तो क्या परमेश्वर खुश नहीं होएगा? जरूर खुश होगा। अगर इसे ब्लैक नहीं किया, इसमें लाइट नहीं, परमेश्वर खुश नहीं होगा। बट हम बेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन कल को मैं बोल रहा हूं कि हर कलीसिया के दीवार ब्लैक ही होना है, तो प्रॉब्लम है। गेटिंग माय पॉइंट? ये सोच हमें सुधारना है। मैं ऐसा कर रहा हूं, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। दैट इज नॉट गॉड। यीशु मसीह ने अपनी चंगाई एक समान कभी नहीं किया। वो इंसानों के हिसाब से अपनी, अगर विजय साथ में आया यीशु मसीह को, उसको एक अलग रीति में चंगाई दिया। लिजन जब आया तो उसको अलग रीति में चंगाई दिया। नो टू मिरेकल्स आर द सेम। लेकिन हम हर चीज को, हमको लगा कि ये गाना पे, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये गाना पे पूरा क्राउड ने हाथ ऊपर किया तो वो सेट लिस्ट में वो गाना हमेशा रहता है। राइट? एंड दिस बिकम्स अ हैबिट। और हम वो गाना नहीं गाया तो कहीं ना कहीं
this is creeping in. So what we are prioritizing? We are prioritizing on the lyrics and the music and the song, but somewhere we are missing the main picture. So I am praying that there will be a day wherein Jibu will not take a song. एक गाना ही नहीं गाएगा और 1 घंटा हम वर्शिप में करेंगे. 1 घंटा मैं बोला मतलब I'm just saying, 2 घंटा भी हो सकता है. So we have to grow in that stature. हम उस स्तर पे बढ़ना है कि यहाँ पर आकर जिबू गाना गाएंगे तो हम उसको देखेंगे. कई लोग ने मैंने देखा ऐसा ऐसा दिखते हैं. ये टीवी स्क्रीन नहीं है, ये क्या है? वर्शिप हो रहा है, परमेश्वर की आराधना हो रहा है. तो हमें परमेश्वर, कई सारी चीजें हमारे माइंड में है. कई बार मेरे साथ हुआ है कि कई जगह पर मैंने गया कि वो वर्शिप लीडर का कपड़ा अच्छा नहीं है, उसने और ढंग का कपड़ा पहना, फटा हुआ जीन्स पहना है. और फिर मैं 5 मिनट वही सोचता बैठा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति का मेरा कोई, हम जल्दी ही कंडेम कर देते हैं, हम जल्दी बोलते हैं कि वो गलत है, और उसकी वजह से हम अपने आप में एक पर्दा लाते हैं जिसकी वजह से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते. अगर जिबू जैसे म्यूजिशियंस रहेंगे तो अगर मेरा टैलेंट ऐसा होता जिबू जैसा, तो मैं बोलूंगा कि वो ऑफ गा रहा है, मैं बोलूंगा कि वो बेस नया नया सीखा है, वो मैं बोलूंगा कि वो कीबोर्ड में उसने अलग की लगाया, और मेरा ध्यान कहां पे हो गया? परफेक्शन इज गुड, परफेक्शन अच्छी बात है, हम प्रैक्टिस करके सबसे बेहतरीन गाना गाना है. लेकिन जब आराधना का वक्त आता है, सो देयर इज समबडी हु इज बियॉन्ड परफेक्शन, द परफेक्ट गॉड. ये चूक होती है, हम चूक करने के लिए नहीं कह रहे मैं, बट एज ए वर्शिपर, एक आराधना के अगुवे होने के आराधक, हम जो आराधना करते हैं, हमारा कंसर्न यहां पर जो हो रहा है वो नहीं, परमेश्वर हमारे अंदर क्या कर रहा है उस पर ज्यादा ध्यान होना है. समझ आ रही है? राइट? मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा, मेरे से भी चूक हुआ है, राइट? बट हम क्या कह रहे हैं? परमेश्वर, लास्ट संडे को मैंने ऐसी की, लेकिन इस संडे को मैं थोड़ा आपकी उपस्थिति में, वो जिबू जो गाता है वो लिरिक्स को सुनना चाहता हूँ, और फिर उस लिरिक्स को मैं गाना चाहता हूँ. और परमेश्वर तेरी उपस्थिति, ये पास्टर उपस्थिति कर रहा है ना, मुझे भी महसूस करना है. वो सिर्फ किसी के लिए नहीं आता, वो सबके लिए आता है. तो यहां पर हम बैठेंगे तो किसी डर के साथ नहीं बैठेंगे, हम करेंगे परमेश्वर, आई वांट टू बी फ्री इन योर प्रेजेंस. अगर आप उठ के खड़ा रहकर आराधना करना है तो हम कोई मना नहीं करते. ताली बजाना है, ताली बजा सकते हैं, आपको नीचे बैठना है, बट उस परमेश्वर को महसूस करने के लिए, क्योंकि यहां से जब आप वापस जाएंगे तो फर्क आपको समझ में आना होगा. मंडे को सुबह उठेगा तो आपको फर्क आना होगा कि आई एम मिसिंग संडे. उस तट तक, आमेन. आइए हम वचन की ओर जाए. लेट्स रीड लूक चैप्टर 17. लूक का सुसमाचार 17वां अध्याय, उसका 11वां वाक्य से लेकर 19वां वाक्य तक. नाउ ऑन हिज वे टू जेरूशलेम, जीसस ट्रैवल्ड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन समारिया एंड गलीली. यीशु मसीह जो है यरूशलेम की ओर आ रहा था, और यरूशलेम की ओर आते वक्त किसके बॉर्डर था? समारिया और गलीली. समारिया और गलीली. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, Go, show yourself to the priests. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, Were not all 10 cleaned? Where are the other 9?
Has no one returned to give praise to God except this foreigner? 19th verse. Then he said to him, rise up, rise and go. Your faith has made you well. यहाँ पर 10 कोड़ों की कहानी है और आज ऑलरेडी जस्ट रियलाइज्ड 1 बज गया. सो 10 मिनट 10 minutes में we'll close this session, right? 10 में से 10 को चंगाई मिली, लेकिन उसमें से कितने लोग वापस आए? एक व्यक्ति वापस आया. और वो एक व्यक्ति से यीशु मसीह एक सवाल करता है. क्या सवाल करता है? कि केवल एक ही व्यक्ति चंगाई हुआ है क्या? और ये सवाल का उत्तर के लिए यीशु मसीह वेट नहीं कर रहा. और यीशु मसीह पूछता है, Has no one returned to give praise to God except this one foreigner? मतलब एक सवाल जब यीशु मसीह ने किया, जवाब के लिए नहीं किया. वो सवाल इसलिए किया ताकि वहां पर इकट्ठे लोग जो हैं, वे लोग इस सच्चाई को समझ पाए कि केवल एक व्यक्ति ही वापस आया है और वो समरिया का है. और ये समरिया के आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग देयर. मैं वो नहीं कहता. आज जब इस व्यक्ति आया, सबसे पहले जब यीशु मसीह, वहां पे लिखा है कि ही इस बॉर्डर से चल के आ रहा था, राइट? और जब उन्होंने, इन 10 लोगों ने यीशु मसीह को देखा, 10 लोगों ने क्या बुलाया? मास्टर. क्या बुलाया? मास्टर. हे गुरु. ऐसा शब्द जो है केवल लूका का सुसमाचार में ही लिखा है. और ये मास्टर करके केवल यीशु मसीह के चेले ही बुलाते थे. और ये लोगों ने एक रेवलेशन पाया. क्या रेवलेशन पाया? कि वो मास्टर है. मतलब उन्होंने वही शब्द का इस्तेमाल किया जो चेले इस्तेमाल करते थे. मतलब कहीं ना कहीं ये 10 कोड़ियों को यीशु मसीह के बारे में जानकारी थी, और उस जानकारी को उन्होंने अपने आप में रखा. और जब उन्होंने उस यीशु मसीह को देखा, तो वो जानकारी देखकर नहीं कहा, हाँ देख देख देख, हमने जिसके बारे में कल वो पास्टर बताया ना, वही आदमी है वो. और फिर वो भीख मांगने गया नहीं, वही आदमी है, चलो हम अपना काम करते हैं. नहीं, उन्होंने क्या कहा? अगर वो आदमी है तो वो मुझे बचाने के लिए सामर्थ्य है. और उन्होंने क्या कहा? दे शाउटेड. मतलब वो रेवलेशन जो यहां पर इस संडे को मैं आपको बता रहा हूं, वो यीशु मसीह केवल संडे को ही काम नहीं करता. वो यीशु मसीह आपके हर दिन काम करता है. कब काम करता है? जब आपने पाया हुआ उस रेवलेशन पर आप बिल्ड करते हैं. जो नबूवत का शब्द या जो रेवलेशन, जो प्रकाशन यीशु मसीह के बारे में आपके हृदय में पहले से है, जब उस प्रकाशन पर आप काम करते हैं, जब उस प्रकाशन को बढ़ने के लिए आप जब रेस्पॉन्ड करते हैं, वहां पे क्या लिखा है? जीसस स्टॉप्ड. यीशु मसीह ने रुका. कई बार इतने सारे प्रचार, अगर आप देखेंगे हमारे कलीसिया में यीशु मसीह के बारे में ही प्रचार होता है. हम दाऊद के बारे में प्रचार नहीं कर पाते. मैं जानबूझकर भी नहीं कर पा रहा, मैंने तैयार किया है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में ही हम प्रचार कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह का जो प्रकाशन मेरे द्वारा आपके अंदर जो हो रहा है, उसे बढ़ने का समय आ गया है. वो केवल एक संदेश के रूप में रहने का समय खत्म हो गया. वो केवल एक कथा के रूप में आपके जीवन में रहने का समय खत्म हो गया है. इट इज टाइम दैट यू से दिस जीसस. अगर ये यीशु मसीह उन लोगों के जीवन में काम किया है, तो मेरे भी जीवन में काम करेगा. और ये 10 लोग ने क्या किया? मास्टर. उन्होंने कहा, हे गुरु. जो चेले बुलाते हैं वही पद उन्होंने बुलाया, हे मास्टर. एंड जीसस, व्हेन ही सॉ देम, ही सेड, गो शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट. उसने कुछ नहीं किया, उसने चंगाई हो नहीं बोला, उसने क्या किया? गो एंड
शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट। क्यों? क्योंकि पुराने नियम में अगर कोढ़ी है तो उसे पहले याजक के पास जाकर बताना है कि मैं कोढ़ी था, लेकिन अभी देखो मेरा स्किन एकदम अच्छा हो गया। और अब लेविटिकस पुस्तक में 14वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितना महंगा काम करना पड़ता था। मतलब कम से कम 3 ऑफरिंग करने पड़ते थे मूसा के टाइम पे, सिन ऑफरिंग, गिल्ट ऑफरिंग, वेव ऑफरिंग। आपको बलि चढ़ाना पड़ता था और अंत में 7 डेज के लिए आपको फिर से बाहर जाना पड़ता था। फिर इतने कम से कम 14 डेज का रिवाज के बाद आपको पवित्र या आप चंगे हो गए हैं करके जब आपको धक्का लगाए तब जाके आप अपने घर में जा सकते हैं। तो ये कौन करता है निर्णय? ये प्रीस्ट करता है, मतलब याजक करता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है गो एंड शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट। और उन लोगों ने उस प्रीस्ट के पास गया, उसमें से कितने लोग वापस आया? 1 जन वापस आया। मतलब जब उसने उन 10 लोगों ने यीशु मसीह के जो समझ को वास्तविकता में जब बदला, उन 10 के ऊपर क्या हो गई? चंगाई हो गई। लेकिन चंगाई कब हुई पता है? जब यीशु मसीह के उस दर्शन पर उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा। तो द नेक्स्ट स्टेप क्या है? उन्होंने यीशु मसीह से एक निर्देशन को पाया। अगर वो 10 में से 5 लोग कहता है उसने मुझे हाथ ही नहीं लगाया, उसने क्या कहा? जाकर दिखाओ। कैसे जाकर दिखाएगा? कोढ़ तो है, मेरे हाथ पैर मुंह में क्या है? कोढ़ है। मैं अगर याजक के पास जाऊंगा मुझे वो बाहर कर देगा। वहां पे इंग्लिश में लिखा है as they went, जैसे ही वे लोग गए, मतलब उस निर्देशन का जब उन्होंने पालन किया, मतलब रास्ते में चलते चलते वे लोग चंगे हो गए। यीशु मसीह के बारे में जानकारी उनके अंदर था, लेकिन जानकारी ने उनको चंगा नहीं किया। आप मेरा या YouTube की 1000 मैसेज सुन सकते हैं, लेकिन आप सुनने के बाद चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे तो कुछ बदलावट नहीं होगा। लेकिन उस संदेश को सुनने के बाद अगर आपने छोटी सी एक कदम भी रखा, तो वो कदम किसके लिए? बदलावट के ऊपर। क्योंकि वे लोग जब चले, वहां पे क्या लिखा है? as they went, जैसे ही वे लोग उस निर्देशन जो यीशु मसीह से उन्होंने पाया, उस निर्देशन का पालन करते गया, वो पहुंचे नहीं। जैसे चला, they were cleansed। और हम में से शायद मैं भी ऐसे ही करता, मेरा काम हो गया ना, अब कई के लिए यीशु मसीह, मैं जिसके लिए यीशु मसीह के पास गया, मेरा काम, मैं चंगा हो गया, मेरे चमड़े वापस आ गए, मेरी बीमारी चली गई। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति, और वो यहूदी भी नहीं था। वो कौन था? समरिया का व्यक्ति था। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं वापस आ रहा हूं। देखिए, उन 10 लोगों को वो प्रीस्ट के पास जाना उनका ऑब्लिगेशन था। मतलब बगैर वो प्रीस्ट या बगैर वो याजक के पास जाकर वे कभी भी अपने घर नहीं जा सकते थे। मतलब इट वाज अ कंपल्शन। वो यीशु मसीह ने कहा, उस इंस्ट्रक्शन को उन्होंने पालन किया, लेकिन चंगा हो गया तो उनके पास और कोई चारा नहीं है घर पे डायरेक्ट जाने का। दे हैव टू गो। उनको जाना जरूरी है। किसके पास? महायाजक के पास। दैट इज एन ऑब्लिगेशन। लेकिन यीशु मसीह के पास आना कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। राइट? वो 9 जन जो है, 10 में से 9 जन वो ऑब्लिगेशन का पूरा किया, लेकिन एक जन ने वो रेवलेशन जो पाया, उसके हित कहा कि मुझे चंगा करने वाला वो व्यक्ति नहीं, मुझे चंगाई किससे मिला है?
सो ऑब्लिगेशन के लिए या जबरदस्ती आपको यहां पर यीशु मसीह के करीब आने की जरूरत, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती करेंगे एक संडे आएगा, जबरदस्ती करेंगे एक दिन प्रार्थना करेगा, जबरदस्ती करेंगे कुछ समय आराधना करेगा। लेकिन अगर आप इस समरिया व्यक्ति के जैसा, आपको अगर सच्चाई में समझ आ रहा है कि मुझे जबरदस्ती किसी की आराधना नहीं करना, मुझे परमेश्वर ने छुआ है और इसकी वजह से ही मुझे चंगाई मिली है, इस समझ में अगर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अकेले भी हैं तब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। समझ आ रही है आपको बात? ये 10 जन का झुंड जो है ना बहुत स्ट्रांग है। हम लोग 3-4 के झुंड जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं, राइट? किधर हम अकेले नहीं जाते हैं। लेकिन ये और एक कोड़ी क्या है, इनको इनका ही कंपनी था। मतलब ये कोड़ी, ये जो लेप्रेसी लोग हैं और कोई उनसे बात नहीं करता। मतलब सालों से, ऐसा नहीं कि कल का लेप्रेसी है, सालों से ये एक दूसरे से जुड़े हैं, सालों से फ्रेंडशिप पे है, सब एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ। लेकिन जब 9 जन ने कहा कि हम अपने घर जाएंगे, एक ने कहा कि मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा जिसने मुझे चंगाई दिया है। He was not bound to obligation. वो जोर जबरदस्ती में यीशु मसीह के पास नहीं आया। He came because of a revelation. He came because of a responded heart. उसके हृदय में एक रेस्पॉन्स था कि ये यीशु मसीह ही आराधना के योग्य है। और उसने क्या किया वहां पर आकर? I just want to rush. क्या किया उसने? He just went and threw himself. उसने क्या किया? अपने आप को फेंक दिया। इंग्लिश में इसलिए अपने आप को, हाँ, मैं सिर्फ बेड के ऊपर ऐसा कर सकता हूँ, सॉफ्ट बेड के ऊपर अपने आप को फेंक सकता हूँ, राइट? नहीं तो चोट लग जाएगी। बट उसने वो सब नहीं सोचा। आई वॉन्ट टू वर्शिप हिम। He jumped, he just lied down and said, please let me be in your feet. मुझे तेरे पैरों तले रहने दो। और वो व्यक्ति जिसने उस प्रकाशन को अपने जीवन में चंगाई के रूप में बदला और उस चंगाई को आराधना के रूप में बदला, क्या किया उसने? उस प्रकाशन जो यीशु मसीह मास्टर है, उस प्रकाशन को उसने अपनी चंगाई में बदला और उस चंगाई को उसने आराधना में बदला। तो यीशु मसीह क्या कहता है? उसको टच कर किया होगा, राइट? राइज। वो 9 लोगों को यीशु मसीह का स्पर्श का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, बट बिकॉज ही केम बैक, द लॉर्ड टच्ड हिम, पिक्ड हिम अप। क्या बोला? राइज एंड गो। ये 9 लोगों को भी कहा था गो, शो योरसेल्फ, बट इसको क्या कहा? राइज एंड गो। मतलब उसे एक नया इंस्ट्रक्शन देता है, एक नया असाइनमेंट दे रहा है। तुझे जाना है, कहां जाना है नहीं बताया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार हो रहा था। He was getting ready to go because rise and go, that is an instruction from the Lord. उसमें कई सारी चीजें छिपी है। Go towards your destiny. तुम्हारी चंगाई को लेके जा, तुम्हारी आराधना को लेके जा। Go. That was an instruction from the Lord. क्यों उसको परमेश्वर की वो इंस्ट्रक्शन मिला? Because he carried revelation into his healing, and that healing into worship, and that worship elevated him to his assignment. वो आराधना जो है उसकी दूसरी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया। तो आराधना कैसा होना चाहिए? जोर जबरदस्ती का नहीं। आराधना should be because of the revelation that you carry, because of your experience with this God. जो प्रकाशन जो आपने इस यीशु मसीह के बारे में पाया है, जो चंगाई आपने अनुभव किया है, जो आपके शरीर में, आपके परिवार में जो अनुभव आपने किया है, उसके प्रति उसके रेस्पॉन्स है आराधना। जबरदस्ती नहीं है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो आपको जो मिला, मिलने के बाद, दैट्स अ सैड स्टेट, राइट?
But God is expecting GPRC to come back even after you have got what you needed. परमेश्वर इस कलीसिया से ये चाहता है कि हमारे जीवन में कोई जरूरत रहे ना रहे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। इसलिए ज्यादा आराधना नहीं करेंगे कि मुझे ज्यादा जरूरत है, इसलिए कम आराधना नहीं करेंगे कि आज मेरा मूड नहीं है, बट हम करेंगे क्योंकि मैं जानता हूं ये परमेश्वर कौन है। आई हैव अ रेवलेशन दैट दिस इज अ पावरफुल गॉड। क्या हम अपनी आंखों को बंद करें? लेट्स क्लोज आवर आईज। परमेश्वर, हम एक ऑब्लिगेशन के तौर पे यहां पर नहीं आए हैं। इट इज नॉट बिकॉज वी आर बॉन्डेड, हम किसी से जुड़े हैं इसलिए यहां पर नहीं आए, हम आपसे जुड़े हैं परमेश्वर, इसलिए यहां पर हम आए हैं। रखा शियाल थारा मना दिया रबा। होली स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर, आपके प्रति एक प्रकाशन हमारे जीवन में दो, ताकि हम जान पाए और हमारी आराधना जो है उस प्रकाशन के प्रति हो। हेल्प अस टू एंजॉय योर प्रेजेंस लॉर्ड। ये आने वाले हफ्ते में परमेश्वर तू हमें चलाए, हर समय एक वेदी बनाने के लिए तू सहायता कर। इस वचन के सामने हम एक वेदी को बनाते हैं प्रभु, तू सहायता करे ताकि ये वचन हमारे लिए एक मार्गदर्शक का काम करे और हमारे आराधना के समय को तू छुए परमेश्वर, ताकि केवल आराधना इस कलीसिया तक नहीं सीमित, हमारे घरों में भी, हमारे अकेलेपन में भी, हमारे जीवन के हर क्षण में परमेश्वर तेरे प्रति उस प्रकाशन के रिस्पॉन्स में आराधना करने के लिए सहायता करे। तूने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।